वो दोनों ही जरूरत है। चलिए সবাই ভালো আছে তো? একটু মৌসুমটা খারাপ ছিল সেই জন্য একটু বিরক্ত হয়েছে। আমরা একটু বিরক্ত হয়েছি কিন্তু দূর থেকে আসতে লেট হয়েছে, কিন্তু অনেকই টার্গেট ছিল কিন্তু মৌসুমটা একটু প্রবলেম হয়েছে। যেহেতু আজকে সেশনটা কিসের জন্য রাখা হয়েছে সেটার জন্য আমি আপনাকে একটু ছোট মাধ্যমে একটু বোঝাবার চেষ্টা করব। আমাদের জীবনে সবথেকে বেশি যার উপর আমরা ডিপেন্ড, আত্মনির্ভর, আমাদের ভারত দেশ একটা কৃষি প্রধান দেশ। ভারতের পর্যাপ্ত মানুষ কৃষি করে, চাষের উপর সবথেকে বেশি নির্ভর। আর এটা আমাদের সৌভাগ্য, আমরা একটা চাষির সঙ্গে কাজ করছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য। কেন কি আজকে যদি চাষ না হবে তবে আমরা খাবো, দেশটা খাবে। তো সব থেকে বড় জিনিস জীবনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, একদিকে ফ্যাক্টরি অন হচ্ছে সেটা আলাদা ব্যাপার। মানুষ বলছে না ফ্যাক্টরি অন করতে হবে, ফ্যাক্টরি দিতে হবে, রোজগার দিতে হবে, কিন্তু রোজগার থেকে সব থেকে বেশি জিনিস চাষটাকে বাঁচাতে হবে। দেখুন এই কথাটা বুঝতে হবে মানুষ, আমি কোনো দল করি না, আর আমি দলকে আমি অনেক দূর থেকে আমার কোনো নাই, কিন্তু একটা জিনিস আমি বলতে চাই, মানুষের হাতে যখন চাষি থাকবে না, চাষ থাকবে না, তবে দেশে যে মানুষ আছে সে খাবে কি? ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, এডুকেশন সব এক সাইড, কিন্তু সব থেকে বড় জিনিস সেটা পেট। যদি আমরা জীবনটা বাঁচাতে চাই, একটা ভালো সব থেকে আর্থিকও যদি আমরা ভাবতে চাই, তো সেটা হচ্ছে আমাকে জমিটা বাঁচাতে হবে। যেরকম এখন আমাদের ভাই একটা কথা বলছিল হরিত ক্রান্তি নিয়ে, যেখান থেকে ইউরিয়া শুরু হয়েছে, হরিত ক্রান্তি আসার পর যখন দেশটা আকার হয়েছিল সেই টাইমে বৈজ্ঞানিকরা একটা তো হ্যাপি স্পিডে ইউরিয়া ডিএপির আবিষ্কার তো হয়ে গেছে। শুধু ওটা হয়েছিল ওই যে খারাপ টাইম ছিল সেটার উপর একটা রোজগার মানে উপজটা বেশি দেওয়ার জন্য, তাকি ভুখমরিটা একটু কম হবে। আরো কিছু কারণ ছিল না, কিন্তু জাস্ট লাইক চাষি মানুষ আমরা এত সরল, এত সহজ कि আমরা আমাদের সঙ্গে যে অত্যাচারটা হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। अगर मैं आपको बताऊं एक बात, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया जब हरित क्रांति आया, उस समय की आदत लोगों ने तुरंत पकड़ लिया, और जो पकड़ा ना फिर छोड़ नहीं पाया, क्योंकि किसान के अंदर एक डर होता है, किसान के अंदर एक डर होता है। और डर क्या बात का होता है कि যদি আমি ইউরিয়া না দিই আর চাষটা যদি না হয় তবে কি হবে? কুরসি এ বাজু লে লো, জায়গা বহুত है। আমি এত টাকা ধার নিয়ে যে আমি বীজ তুলেছি, সার দিয়েছি, চাষ করছি, সেটা যদি আমি না করি আর যদি আমার ফসলটা না হবে তো আমার কি হবে? লস হবে। আর সেই লোকসান থেকে বাঁচার জন্য আমরা ইউরিয়া এন্ড ডিএপি ছাড়তে পারছি না। একটা জিনিসটা ভাববেন, যদি আমি ছাদটা মানে ভাঙতে চাই, চেঞ্জ করতে চাই, এই পিলারটা যদি চেঞ্জ করতে চাই তো আমাকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে। আজ পর্যন্ত আমরা সাপোর্টটা ভালো পেলাম না, যা হোক কিছু তো হয়েছে যার জন্য আমরা ছাড়তে পারলাম না, মানে मन से अपना छोड़ भी नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोगों का यूरिया छोड़ना मजबूरी है क्या? मैं आपको बताऊं यूरिया छोड़ना इतना मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे युवा पीढ़ी को नशा बर्बाद कर रहा है, उस तरह से जमीन को रासायनिक खाद बर्बाद कर रहा है। आज आपको जान के बहुत दुख होगा, आज हम सब लोगों की देश में सबसे ज्यादा अगर लोग पीड़ित हैं तो शुगर एंड कैंसर, शुगर, प्रेशर, कैंसर, ये ऐसी एक सेगमेंट आ गया जो हर घर में है।
छोटे छोटे बच्चों को शुगर है। आज दुख है, आप बोलेंगे ये कैसे हो रहा है कि एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा। आज रासायनिक खाद का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ा है कि मां का दूध में भी रासायनिक खाद का प्रकोप दिखने लगा। और इस चीज को हम नहीं कह रहे, इस चीज को जानने के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप लाइव टेलीकास्ट आप अगर देखना चाहते हो तो आप सर्च करें पंजाब का हाल। पंजाब कैंसर से तो हर घर में लड़ रहा है कैंसर। क्यों? क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, सबसे ज्यादा खेती पंजाब में होता है। उस खेती को उठाने के लिए सबसे ज्यादा रासायनिक खाद डालता है, केमिकल्स का स्प्रे करता है, ओवरडोज। और ये ओवरडोज खत्म नहीं होता है दादा। आपका खेत में डाल रहे हैं ना, वो खेत से उस खेत में पानी जाता है, आपका खेत को भी बर्बाद कर रहा है, उस खेत से अगला खेत में पानी जाता है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। जहां तक कि उतना ही नहीं बर्बाद हुआ, पशु पक्षी भी मरने लगा। पहले बगुला कितना ज्यादा था, सादा वो क्या बगुला पहले बग जो होता था वो मछली आपके खेत में चुनता था। कीड़ा, आपके जो हानिकारक कीड़ा होता था उसका किसान का मित्र बोला जाता है बग को। आपका खेत से कीड़ा को खा जाता था, मगर आज के डेट पे बग नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा उसने भी उस यूरिया केमिकल्स की वजह से वो खा चुका है जो आज वो खुद ही नहीं बच पाया है। दूसरी चीज, हम सब लोगों का जीवन शैली भी बदलता गया। आज रेडिएशन की वजह से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। रेडिएशन कहां से आ रही है? हम सब लोगों के पैकेट में कम से कम एक मोबाइल तो आ ही गया है। मोबाइल का 1 घंटा टावर अगर बंद हो जाए तो हम तहलका मचा देते हैं की होय छे। 10 बार आप फोन करने लगेंगे, हमार मोबाइल तक नहीं होय छे। हम लोग एक आदत हो गया है। बट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें। आज साइंटिफिक चीज मैं आपको बताता हूं। हम लोगों का मिट्टी ऑलरेडी 5 लेयर इज डेड। 5 लेयर तक मिट्टी मर चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, मिट्टी विशेषज्ञ कहता है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल मिट्टी को हटाना पड़ रहा है। हर साल मिट्टी को हटाएगा तो जाके अच्छा फसल ले पाएगा। अब एक बात आप बताइए, किसान के पास इतना पैसा कहां है? 5 लेयर मिट्टी, यानी कि 5 लेयर मिट्टी को हटाने के लिए आप जरा सोचिए कितना उसको खर्च पड़ेगा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम सब लोगों ने काम किया और हमारे देश के बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, यासिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ ओनली फॉर किसानों के लिए बेहतरीन सोच के साथ काम करते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले सारे प्रोडक्ट्स बायो नैनो टेक्नोलॉजी पे बनी है। बायो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, सबसे पहला चीज। दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी पद्धति है जो आपको रिजल्ट स्पीड में देगा। स्पीड में क्यों देगा? आप बोलेंगे क्यों देगा? क्योंकि आप यूरिया छोड़ना नहीं चाहते। यूरिया के साथ अगर आपका रिजल्ट खराब ना हो, इसकी वजह से आपका बैलेंस ना बिगड़े, इसकी वजह से आपका पैसे का नुकसान ना हो, इसकी वजह से যদি আপনি ভাবুন কি যদি আপনি মন থেকে আপনি একটু দেখুন, একটা ভাবনা চিন্তা করবেন কি আপনার পাশে যদি ক্ষেত ভালো হচ্ছে তো আপনার বুকে কেমন লাগে? খারাপ লাগে। কেন খারাপ লাগে? কেন? একটা চাষের মধ্যে ও চাষকে সবথেকে বেশি ভালোবাসে। যেরকম একটা বাবা নিজের ছেলেকে ভালোবাসে कि वो फलानार बेटा इंजीनियर केमन करे हो गल, তুই কেন হলি না, तू क्या मिट्टी कमी दिएছি। सेम इसी सेगमेंट में हम एक चाषी अपने खेत को भी प्यार करते हैं। अब 2 चीजें हैं कि हम ऐसी चीजों में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद कर दें, আমি এইরকম জমিতে সবথেকে বেশি টাকা দিয়ে দেব। যদি আপনি ভাবুন একটা সরল পদ্ধতি, আপনার ইনভেস্টমেন্টটা কোথা হচ্ছে এই জিনিসটা বোঝার জন্য আপনি একটা জিনিস ভাবুন কি যে টাইম আপনার চাষে এখন প্রবলেম হচ্ছে, যে কোনো গলা পচা বসা কোনো রোগ লেগে যায়, আপনি কি করেন? আপনি একটা পাতা তুলেন,
পাত্তা তুলে আপনি দোকান স্থানের দোকান যান, বলুন দেখুন না দেখি কি হয়েছে, একটু ওষুধ দেন। দোকানওয়ালা